जय सद्गुरुदेव, जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा समस्त प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा महापुरुष निरंतर अपने आत्म स्वरूप में ही मग्न रहता है। इस कारण न तो उसे किसी भी कर्म के द्वारा कोई लौकिक या पारलौकिक प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है और न इसी प्रकार कर्मों के त्याग द्वारा ही कोई प्रयोजन सिद्ध करना शेष रहता है। उसकी समस्त इच्छाएं एवं अभिलाषाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। इस कारण उसके लिए न तो कर्मों का करना विधेय है और न उनका न करना ही विधेय है। वह शास्त्र के शासन से सर्वथा मुक्त है। ऐसे महापुरुष का किसी भी प्राणी से किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा कर्म किए नहीं जाते। प्रारब्ध अनुसार लोक दृष्टि से उसके द्वारा लोक संग्रह के लिए कर्म होते हैं। वास्तव में उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता। इसीलिए उन कर्मों को कर्म ही नहीं माना गया है। In sound sleep, man is self-sufficient. He has nothing to seek from any entity, but it is a negative and temporary state. The spiritually enlightened man, on the other hand, enjoys infinite beatitude within himself. The surface of the ocean seems boisterous, but at the bottom it is all calmness. Such is the state of affairs of the Brahmagyani. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ആ മഹാനായ മനുഷ്യന് ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിലോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലോ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടിയ ഒരു ചെറിയ ബന്ധം പോലുമില്ല. അത്തരം മഹാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിരന്തരം തൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട ലൗകികമോ ആത്മീയമോ ആയ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യമോ പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ലക്ഷ്യമോ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അവൻ്റെ എല്ലാ ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും അവസാനിച്ചു. ഇനി അവന് നേടാനൊന്നുമില്ല. ഈ കാരണത്താൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതോ അവനൊരു പ്രശ്നമല്ല. അവൻ വേദങ്ങളുടെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനാണ്. ഇത്രയും മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു സൃഷ്ടിയുമായും സ്വാർത്ഥമായ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിധിപ്രകാരം അവൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുമായി അവന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവൃത്തികളെ കർമ്മമായി കണക്കാക്കാത്തത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ആഗ്രഹം పూర్ణమాగట్టే. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. మా సద్గురు సందేశం. అట్టి మహాపురుషునికి ఈ ప్రపంచంలో కర్మను ఆచరించడిచే ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. కర్మను ఆచరించకపోవడిచే కూడా ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. ఇంకను సమస్త ప్రాణులు ఎందును కించిన మాత్రపు స్వార్థ సంబంధం కూడా ఉండదు. అందుచే అటువంటి మహాపురుషుడు నిరంతరం తన ఆత్మస్వరూపం నందే లీనమై ఉంటాడు. ఈ కారణం చే అతనికి ఏ విధమైన కర్మచేతనం, ఏ విధమైన లౌకిక పారలౌకిక ప్రయోజనం సాధించే శేషమేమీ మిగిలి ఉండదు. మరియు ఏ విధమైన కర్మనైనా పరిత్యజించడం ద్వారా ఏ విధమైన ప్రయోజనమును పొందదగు శేషమేమీ కూడా మిగిలి ఉండదు. అతని యొక్క సమస్త కోరికలు, అభిలాషలు పూర్తి కాబడినవి. ఇప్పుడు అతనికి పొందవలసింది ఏమీ మిగిలి ఉండలేదు. అందుచేతనే అతనికి విధేయతతో చేయదగిన కర్మ లేదు. వాటిని చేయకుండా ఉండినప్పటికీ అతడు విధేయుడే. అతడు శాస్త్రముల నుండి సర్వదా ముక్తుడు. అట్టి మహాపురుషునికి ఏ విధమైన ప్రాణులతోనూ ఏ విధమైన స్వార్థ సంబంధం ఉండదు. అతని ద్వారా కర్మ చేయబడదు. ప్రారంధమును అనుసరించి, లోక ఆచారమును అనుసరించి అతని ద్వారా లోక రక్షణార్థము
మాత్రమే కర్మలు చేయబడుతూ ఉంటాయి. వాస్తవానికి అతనికి ఆ కర్మలతో ఏమాత్రము కూడా సంబంధం ఉండదు. అందుచేతనే అతనిచే చేయబడే కర్మలు కర్మలుగా భావించబడవు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు. నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. त्या महापुरुषाला या जगात कोणतेही काम करण्याचे कोणतेही उद्दिष्ट नाही आणि कोणतेही काम न करण्याचेही त्याचे कोणतेही उद्दिष्ट नाही आणि सर्व प्राण्यांशी त्याचा किंचितही स्वार्थी संबंधी नाही. असा महान माणूस सतत स्वतःच्या खऱ्या स्वभावात रमलेला असतो. या कारणास्तव कोणत्याही कृतीने साध्य करण्यासाठी कोणताही सांसारिक किंवा आध्यात्मिक उद्देश शिल्लक नाही किंवा कर्म सोडून देऊन साध्य करण्यासाठी कोणताही उद्देश शिल्लक नाही. त्याच्या सर्व इच्छा आणि आकांक्षा संपलेल्या आहेत. आता त्याला साध्य करण्यासाठी काहीही उरलेले नाही. यामुळे त्याच्यासाठी कर्म करणे किंवा न करणे ही पूर्व अट नाही. तो शास्त्रांच्या नियमापासून पूर्णपणे मुक्त आहे. अशा महापुरुषाचा कोणत्याही प्राण्याशी स्वार्थी संबंध नसतो. नियतीच्या दृष्टिकोनातून तो कृती करत नाही. तो लोकांच्या कल्याणासाठी करतो, परंतु प्रत्यक्षात त्याचा त्या कृतीशी काहीही संबंध नाही. म्हणूनच त्या कृतींना कर्म अजिबात मानले जात नाही. ओई महापुरुषक एहि संसार में कोनो काज करबाक कोनो उद्देश्य नहीं अछि आने ओकर कोनो काज नहीं करबाक कोनो उद्देश्य अछि. समस्त जीव सँ ओकर कोनो तरहक स्वार्थ के संबंध नहीं रहैत अछि. एहन महापुरुष अपन आत्मज्ञान में निरंतर लीन रहैत अछि. एहि कारणे ओकर कर्म में सांसारिक व पारलौकिक प्रयोजन के सिद्ध करबाक मंशा नहीं होइत अछि. आने कोनो कर्म के त्याग सँ अपन उद्देश्य सिद्ध करऽ के इच्छा होइत अछि. ओकर कोनो इच्छा मनोरथ नहीं बचल अछि. आब ओकरा किछ प्राप्त करबाक इच्छा नहीं बचल अछि. एहि कारणे एहन व्यक्ति ने अपन कर्म सँ परिभाषित होइत अछि, अन्य कर्म नहीं केला सँ परिभाषित होइत अछि. ओ शास्त्र के शासन सँ पूर्ण रूपेण मुक्त अछि. एहन महापुरुष कोनो प्राणी सँ कोनो तरहक स्वार्थ नहीं राखैत अछि. कर्म ओकरा द्वारा नहीं कयल जाइत अछि. नियति के अनुसार जन दृष्टिकोण सँ ओ जनहितक लेल कर्म करैत जाइत अछि, मुदा यथार्थ में ओहि कर्म सँ ओकर कोनो तरहक संबंध नहीं रहैत अछि. यह कारण अछि जे ओकरा द्वारा कयल गेल कर्म सब कर्म नहीं मानल जाइत अछि. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.